Hello student, today I'll discuss 12th class relation. Before going to this, we have to discuss some basic of relations because in 11th class you studied it, what is relations and domain, codomains. So it is the 12th class, so we have to discuss some previous knowledge about relations, then we will start our 12th class relations, that starting from reflexive relations, symmetry relations, and transitive equivalent relation, equivalence classes, etc. Okay, so what is relations? Before going to relations, see relations. First you have to know what is Cartesian product. What is Cartesian product? Let A and B be two non-empty sets. The set of all ordered pairs. What is ordered pairs? AB such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of set A with set B is denoted by A cross B. Achha, what is ordered pair? Ordered pair means this is ordered pair AB, where A is the belongs to one set and B is belongs to one set. If we take an example of this, you know it very well that in class of 10th, you know how to draw xy if the points are 2 and 1 and 2 and 2. You have to draw in x-axis and y-axis. What is point? The points are 2 and 1. That means in x-axis the point is 2 and y-axis point is 1. That means it is if 1 and 2. If it is 1 and 2, 1 and 2, then what is 2? It is 2 1 and it is 2 2. This in 2 1 cases, and the 2 is in x-axis. 2 is the x-axis and 1 is for y-axis. So this 2 1 is known as ordered pair. This 2 1 is known as ordered pair. That means we are keeping this in a particular order. That means 2 is for x-axis, 1 is for y-axis. Same in this case, A is for a set and B is for another set. Thus A cross B is equal to AB, where A belongs to A and B belongs to B. Achha, B cross A, B A. If A cross B, A and B, then B cross A also starting from B elements, that is B and A. Achha, also A cross B will be phi if A is equal to phi or B is equal to phi. अगर ये बोलता है कि A क्रॉस B कोई भी एक दोनों फाई हो जाएगा, कब होगा? जब A फाई होगा और B फाई हो जाएगा. अच्छा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है? देखो, A ले लिया 1 2 3 and B x y, then A cross B 1 2 3. You have to write A set and B set in a round. Then we have to choose 1 to x, 1 to y, because there is 2 element and we have to cross product from 1 to 2 elements. Similarly 2 to 2 element, 3 to 2 elements. That means we have to write 1x 1y, 2x 2y, 3x and 3y. And this is the Cartesian product. And another form of Cartesian product, you can write it 1 2 3 xy. That means 1x 1y, 2x 2y, 3x 3y. Okay, you can write in this format also. It is tabular form, it is a round form. We can say that round form. That means we have in a round we are replacing the numbers and then product it itself. Okay, then we can also find A cross A. That means cross product of A with respect to A. In A set we have 1 2 3 and 1 2 3. Okay, the 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. These are the elements of A cross A. Okay, and this is the order pair. You know that very well. अच्छा, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. रिलेशन क्या बोलता है
कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये बोलता है कि कोई भी आर है, सपोज एक आर है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, देन इसी आर को हम बोलेंगे कि इट इज़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, एंड ए क्रॉस बी मीन्स यू नो दैट वेरी वेल दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड विल बी बिलोंग्स टू बी। दोनों सेट का, ये जो ए बी है दोनों सेट का एलिमेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमको ऑब्वियसली दो एलिमेंट ही मिलता है। देखो जिस ऐसे से ऊपर में केस देखो, 1 1 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको क्या मिला, 1 1, द 1 ए फॉर ए ऑल्सो 1 फॉर ए, सिमिलरली ए बी। नाउ इफ ए बी बी एन एलिमेंट ऑफ द रिलेशंस आर देन वी राइट ए रिलेशन टू बी। ये बोलता है कि अगर ए बी कोई एलिमेंट है रिलेशन का, तो हम क्या बोलेंगे, ए आर बी मीन्स ए रिलेशन टू बी। ओके, और ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी। अच्छा, इफ ए बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द रिलेशंस, अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ए आर में ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब है ए नॉट रिलेटेड टू बी। ओके, देन एग्जाम्पल, ए दे दिया 1 2 3, बी है ए बी, तो आर इज इक्वल टू 1a 1b 1c 3a 1a 1b एंड 3a। ये बोलता है कि इज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये जो आर है ये एक रिलेशन होगा क्या, ए टू बी। देखते हैं। अच्छा, तो क्या किया, ए ले लिया 1 2 3, बी हो गया ए एंड बी। तो ए का है ए 1 2 3, बी का ए बी है, तो मल्टीप्लाई करो 1a 1b 2a 2b 3a 3b, तो ए क्रॉस बी आ गया। अच्छा, ए क्रॉस बी ये आ गया 1a 1b 2a 2b 3 एंड 3b। अच्छा, आर क्या दिया था, आर गिवन टू अस दैट 1a 1b 3a। ओके, दैट मीन्स आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज ऑब्वियस, सो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये समझ में आता है, किसी का कोई सेट दिया है उसको हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल देंगे, और कोई और कोई सेट दिया होगा, अगर वो सेट ए क्रॉस बी का सबसेट बन जाता है तो वो सेट हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फैमिली का रिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि हमारा फैमिली का जो जितना मेंबर है, ठीक है, हम उसका सबसेट है। अगर पापा मम्मी भाई ऐसा कोई आया ना हमारा फैमिली में, तो हम जो है वो फैमिली को सबसेट बनता है, तो हम भी फैमिली का रिलेशन बोल पाएंगे। ओके, ऐसा ही मैथ में होता है ऐसा। ये बोलता है इफ़ ए हैज़ एम एलिमेंट बी हैज़ एन एलिमेंट, अगर ए के पास एम एलिमेंट है बी के पास एन एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना रिलेशन होगा, 2 to the power mn, क्योंकि ये सबसेट का कंडीशन है, हमको ये मालूम है अगर ए के पास एम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 to the power m। ओके, सो अगर इसमें हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और सबसेट का कंडीशन हिसाब से इसको 2 to the power mn लगा दिए। ओके, नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power m, ऐसा ये 2 सेट है इसीलिए 2 to the power mn। अच्छा, एग्जाम्पल ले लिया, ए के पास 1 2, बी के पास ए बी, कितना बोलता है कितना होगा रिलेशंस, तो ए का मॉड ले लो 2, बी का 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 to the power 2 क्रॉस 2, 2 to the power 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 to the power 4 इज इक्वल टू 60। अच्छा, if A and B are two sets and R is a relation from A to B is called empty relation is R is equal to phi। ये बोलता है कि A क्रॉस B का R सबसेट है, दैट मीन्स R रिलेशन है। अगर दिस R इज इक्वल टू phi, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन। अगर ये जो R दिया हुआ है ये phi हो गया ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। If A and B are two sets and R is a relation from A to B is called universal relations if R is equal to A cross B। अच्छा, R जो है रिलेशन है A cross B का, that means R subset of A cross B obviously, and if this R is equal to A cross B that means every set subset of itself, that means A cross B subset of A cross B, and here R is equal to A cross B and this is called universal relation। अच्छा, रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन सेट मतलब लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है
then a relation from A to itself, that is a subset of A cross A, is called a relation on a set A. इसका मतलब ये होता है, हमको पता है कि रिलेशन मतलब ये होता है कि A क्रॉस B निकालो और R जो होगा सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और रिलेशन ऑन ए सेट मतलब ये जो B है ना, B नहीं है, ये B भी A है। मतलब हम जो प्रीवियसली क्या कर रहे थे, A क्रॉस B निकाल रहे थे, तो रिप्लेसमेंट ऑफ B वही A ही आएगा। इसका मतलब कोई भी रिलेशन अगर A क्रॉस A का सबसेट हो गया तो इसका हम बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट। तो first we have to find A cross A, then to show R that is subset of A cross A, and that R is said to be relation on a set, that means वही सेट के ऊपर रिलेशन है। ओके, देन ये बोलता है कि A क्रॉस A, अच्छा फाई सबसेट ऑफ A क्रॉस A ऑब्वियसली हो पाएगा क्योंकि फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, इसको बोलते हैं वॉइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए के ऊपर जो फाई सबसेट ऑफ A क्रॉस A हो गया, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। अच्छा, इफ A क्रॉस A सबसेट ऑफ A क्रॉस A, एक एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, that means this relation is also called universal relation on set A. Okay, अच्छा, identity relations. What is identity relations? Let A be a set, then the relations IA, A belongs to A is called the identity relation on A. इसका मतलब ये बोलता है कोई एक सेट दिया हुआ है हमको, अगर सेट का एलिमेंट A है और सेकंड में जो आएगा वो भी A आएगा। ओके, आइडेंटिटी देखो, एग्जांपल है A दिया है 1 2 3, इसका मतलब IA जो होगा वो हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। इसका मतलब एक 1 का आइडेंटिटी 1, 2 का आइडेंटिटी 2, 3 का आइडेंटिटी 3। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ रिलेशंस बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द second year, that means 12th class mathematics of relations. Next class I will start what is types of relations, that reflexive relations, symmetric relation and transitive relations. Okay, thank you.